of problem regarding the audio, you can just ping me in the chat box. And I request the host that to give me the screen sharing rights. Can you please give me the screen sharing right? Or it will be better, you can also make me the host, because I have to show some PPTs. Now you are host. Okay, thank you so much. So again, a very warm welcome to everyone for today's Bhagavad Gita session. And I had joined on time. I was not late actually, but there was some technical slack. Sometimes we are dealing with the technology, and in the field of technology, things are unpredictable. So without delay, let me start today's session. And I am having almost 102 participants, including me. So I request everyone that not to ping again and again in the chat box in between, because it distracts my attention also. And we have very small time. Within a span of almost 45 minutes to 50 minutes, I will try to convey something which is of the utmost importance. It can bring about a paramount change in your life. Throughout your whole life till date, you might have never come across such kind of wonderful content. So, as all of you know, that Bhagavad Gita, it's nothing new, especially for the Indians. The Bhagavad Gita, okay, again, this is, I think 100 can join. So I think you can just put it on YouTube also then. If it is a limitation of 100 participants, then maybe you can yes. direct to the YouTube also. So the Bhagavad Gita is not an alien word special to any Indian of whatsoever age. Now, the Bhagavad Gita, it has got so many teachings, so many valuable teachings for every one of us. But out of those many teachings, today, at least one of the most important teaching given in the Bhagavad Gita, one of the most important conclusion of Bhagavad Gita, I will try to make you understand. Because definitely it's not possible to understand the entire Bhagavad Gita in a span of 45 minutes for the people like us. Yes, Arjuna understood Bhagavad Gita from the lips of Krishna only in a span of 45 minutes to 1 hour. Do you know? The Gita was spoken by Lord Krishna to Arjuna within a span of only 45 minutes to 1 hour. The Bhagavad Gita, which we are not able to understand within one entire lifetime, Arjuna understood in 1 hour, less than an hour. That was the competence of Arjuna. So today we will understand one concept from Bhagavad Gita. As so, I dedicate this session to my beloved spiritual master, His Divine Grace, Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. I think a few of you may be aware of this great personality. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. He is the founder Acharya of worldwide Hare Krishna movement. To propagate and preach the teachings of Bhagavad Gita across the globe in a very scientific and systematic way, in a very logical way, to the younger generation especially, Srila Prabhupada incorporated
a society by the name Hare Krishna movement or ISKCON. The ISKCON stands for International Society for Krishna Consciousness. So, because the Indians, especially the time it was 1965, in the year 1965, His Divine Grace, he started from India, from Calcutta to United States of America. For what? Not to earn money, not to establish some business. No, he went only for the purpose of preaching God consciousness, preaching the teachings of Bhagavad Gita. And that time his age was 70 years and he had only 40 rupees in the hand. And he landed in New York, sorry, in Boston first. And when he landed in the Boston, he found that the Americans, they are extremely materialistic. The skyscraper buildings, the pubs, bars, you all know the Western culture, which we are imitating at the moment. But why he went to the West? Because he tried to preach in India for almost 40 years, tirelessly, diligently. But Indians, they became so much slave of the Western culture, especially America, that they were not hearing the teachings. They were not paying attention to the teachings of our scriptures, the Vedas, the Bhagavad Gita, the Shrimad Bhagavatam and Upanishads. So His Divine Grace, on the order of a spiritual master, he decided that unless and until I bring some Western people, Americans, Europeans, following the teachings of Bhagavad Gita as devotees of Krishna, the Indians are not going to take their glorious culture very seriously. So we dedicate our session to the great personality. He is our my soul master. Before starting any session, it is the Vedic culture that we chant invocation prayers to invoke auspiciousness. I will be chanting these Sanskrit prayers and then I will be taking you through this presentation. Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now let's start the first lesson from the Bhagavad Gita, that is the science of self-realization. The science of self-realization is the first lesson given in the Bhagavad Gita. Some people, they understand Bhagavad Gita to be merely a motivational book or an inspirational book or some problem solving manual. Yes, definitely. Gita is a motivational book. Gita is an inspirational book. Gita is a problem solving manual. But that is not the Gita all about. The Bhagavad Gita has got very deep meaning. It talks about some very fundamental questions, very fundamental aspects of the human form of life. And that most fundamental aspect of the human form of life is the self-realization, which at the moment entire human society is forgetful of. That's why Gita is, though session is named Bhagavad Gita for managers and engineers. But when we are born, we are neither manager, nor engineer, nor teacher,
nor doctor, nor politician, nothing. When we are born, we are a simply human. Everybody is born as human. That's the Gita is for a human being. It may be whatsoever occupation one may be engineer, doctor, or manager, or architect, or politician, scientist, technocrat, whatsoever one may be. Gita is applicable for one and all, like the oxygen is required for everyone. Similarly, the Bhagavad Gita is that kind of important knowledge. If that is not in our life, then we will be also having a kind of suffocation, just as the body suffocates without oxygen. That's why people, you see, people, they have a lot of money. Recently, I got a WhatsApp post from one of my colleague. Most of you must be knowing also Justin Bieber, correct? He's a very famous pop star, and especially the English songs, Hollywood songs. And he's too famous, not even 30 years old. He made a statement that when I go to sleep, my bodyguards, they have to check my pulse. You know why? So he told, I have taken so much of drugs just to get a simple sleep. I have taken so much of drugs. So a person who is having unparalleled fame, see, he's so famous. He's a wonderful celebrity. Despite of having so much of the fame, he has to take drugs. So unhappy, so much problems, so much anxiety, so much tension, so much internal suffocation. Because no one will take drugs unless and until he's going through a lot of mental anxiety. To forget it, they take drugs, knowing very well that it will harm the person. So the very important point, the self-realization, means the Bhagavad Gita answers the most fundamental question, who am I? It may look you something very childish, these three words, who am I? Sir, what is this? Oh, it doesn't suit my intellect. Who am I know. Oh, my name is Rahul, my name is Ritesh, my name is Richa, my name is whatever. Sir, I know who am. Why are you talking all this? Who am I? No, this is the most fundamental question. Who am I? Who we are actually? Have we ever asked these questions to us? So in the early years of 20th century, a scientist analyzed the constituents of the human body. I'm taking you through a lot of getting the scientific stuff. So the scientists, they analyzed that the most of the human body is water. We all know this thing. Almost 70% or more than that, the human body is water. And they are analyzing in a 60-pound person, there are about 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces of sulfur and sodium, 1 ounce of magnesium, and less than an ounce of iron, copper, and iodine. So I am not interested here in the in a path lab data, correct? We are not here to analyze some data from the pathology lab. The point is what? Can you just guess the total worth of these chemicals? It's not more than 210 rupees. All these chemicals put together, their worth does not come more than 210 rupees just.
So do you think that we are only a bundle of chemicals, bag of chemicals, worth of 210 rupees? Do you think so? No, definitely not. Why? Let's understand. So question comes, are we just a bundle of chemicals which have aligned together by chance? Hmm? And this bundle of chemicals, it is exhibiting various feelings and emotions. See, I got one chat. सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दो. आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लोग हिंदी में, प्लीज शुभेंदु सर कैन लेट मी नो, क्या मुझे हिंदी इंग्लिश मिक्स करना चाहिए या फिर ओनली इंग्लिश आई शुड गो थ्रू? बिकॉज Sir, यहाँ you can. मुझे सचिन इज टेलिंग सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दो. आई होप Sir, आई some शुड of the students मिक्स are from हिंदी एंड rural इंग्लिश. background. ठीक है, ओके, फॉर योर Sir, ओके you ओके, can. ठीक है. आई एम वेरी सॉरी, आप लोग पहले मुझे बोल देते तो मैं दोनों मिक्स कर No, देता. no, no issue, हाँ, no issue, no issue, इवन sir. मेरे पास ये पूरा पीपीटी हिंदी में भी है. अगर आप चाहे तो मैं पूरा शुद्ध हिंदी में भी ले सकता हूँ आपके लिए, बट ठीक है, अभी आई विल मिक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश. ओके. तो अब तक हमने क्या समझा? हम जो फर्स्ट लेसन है वो गीता समझ रहे हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान. ये पहला लेसन है भगवत गीता का. और हमने समझा है, हम समझना चाह रहे हैं हु एम आई, मैं कौन हूं. ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी को अपने जीवन में पूछना चाहिए, क्योंकि केवल मनुष्य वही ये प्रश्न कर सकता है. एक जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े वो ये प्रश्न नहीं कर सकते. तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें और इसका हम वैल्यू एनालाइज करें, तो इसका जो मूल्य है, इसकी जो वैल्यू है, अभी हमने इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे रसायनों का हमने विश्लेषण किया और हमने पाया कि हमारी बॉडी में आयरन है, फॉस्फेट है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, और भी इतने सारे केमिकल्स हमने देखे. और साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, टोटल वैल्यू क्या है इन सारे केमिकल्स की? 210 रुपए. प्रश्न उठता है कि क्या हम केवल 210 रुपए की वैल्यू के बराबर का एक बैग है, बंडल है? और ये बंडल जो है, ये बंडल, ये जो केमिकल कंपोजिशन है, ये रसायनों का जो थैला है, ये अलग अलग इमोशंस दिखा रहा है, भावनाओं का प्रदर्शन कर रहा है. करेक्ट. कभी आप पाएंगे कि कभी क्या है, इसको ये खुश रहता है, कभी ये दुखी हो जाता है, कभी ये बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है, तो कभी बहुत ज्यादा अपसेट होता है. तो क्यों इस केमिकल बैग के अंदर ही इमोशंस क्यों? चलिए मैं आपको और आगे लेके जाता हूं. थोड़ा सोचिए इसके ऊपर कि अरे इस केमिकल बैग के अंदर इमोशन क्यों है. मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे सेशन ले रहा हूं. आप में से बहुत से लोग मोबाइल पे सुन रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग लैपटॉप या पीसी पे सुन रहे हों. तो जैसे ही कुछ लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया कि प्लीज हिंदी में बोलिए, तो जैसे मैंने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया तो हमारे इमोशंस चेंज, कुछ लोगों के इमोशन चेंज होंगे. थोड़ा चेहरे पे स्माइल आई होगी, हाँ अब अच्छा है. बट आपका मोबाइल जो है उसने मुस्कुराना स्टार्ट नहीं किया. आपने देखा होगा मोबाइल भी आपका मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, हाँ अब अच्छा है, हिंदी में बोल रहे हैं. तो फर्क क्या है? हमारे में हमारा मोबाइल भी जो है वो भी एक केमिकल का बैग है. हाँ, और हाँ, हमारी जो कार है वो भी एक केमिकल है. चलिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल, नॉट हाइपोथेटिकल मींस आई एम जस्ट गिविंग जस्ट फॉर योर सेक. सपोज भगवान चाहे ऐसा कभी ना हो,
आपका फ्रेंड जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, और आप भी उस कार में बैठे हैं। फॉर्चुनेटली आपको कोई चोट नहीं आती और फ्रेंड को बहुत चोट आ जाती है। तो फ्रेंड को जब बहुत चोट आ जाती है, कार जो है वो चलना, हाँ, वो एक्चुअली में चलना बंद कर देती है और आप कार से उतरते हैं। फ्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके सिर से खून निकल रहा है। और आपकी जो कार है, वो कार क्या है, वो इंपोर्टेड कार है, लाखों की कार है, मान लीजिए 20, 25, 30 लाख रुपीज की कार है वो। तो वो जो कार है उसकी कॉस्ट 30 lakhs है, और हमारा फ्रेंड की कॉस्ट क्या है, अभी हमने एनालाइज किया, क्योंकि हम लोग तो क्या है, वी गो थ्रू साइंस। और अगर हम एनालिसिस हमने किया है अभी अभी भाई, केमिकल एनालिसिस, हमें पता है कि बॉडी की वैल्यू तो क्या है, हार्डली 300 रुपए, 210 रुपए है बस। तो किसको बुलाएंगे हम? तो हमारा ब्रेन जो है, अगर हम ब्रेन की हेल्प लें, इंटेलेक्ट की हेल्प लें, तो एनालिटिकली तो क्या आता है कंक्लूजन? द एनालिटिकल कंक्लूजन इज, किसको बुलाओ? पहले मैकेनिक को बुलाओ, क्योंकि कार ज्यादा महंगी है, फ्रेंड सस्ता है। यस और नो? लेकिन हम किसको बुलाते हैं? क्या हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं? हम किसको बुलाते हैं? यस, हम सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, हम रश करते हैं हमारे फ्रेंड को, फटाफट से कहां लेके जाओ इसको, हॉस्पिटल लेके जाओ। सब लोग रश कर रहे हैं, पैनिक में हैं, लॉट ऑफ कमोशन। व्हाई? क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें? कि ऐसा कुछ है, समथिंग इज देयर। अगर ज्यादा देर किया, कुछ टाइम बाद में, अगर थोड़ा और टाइम निकल गया, तो कुछ टाइम बाद में क्या है, जो हमारा फ्रेंड है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर से कुछ ऐसा गायब हो जाएगा, जिसके बाद उसको बोलेंगे क्या, उसको हम फ्रेंड नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे बॉडी। फिर वो बॉडी बन जाएगा। जैसे अस्पताल में होता है, हॉस्पिटल में जब तक व्यक्ति लाइफ सिम्टम है उसको बोलते हैं पेशेंट, और लाइफ सिम्टम चले गए तो क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं बॉडी। तो क्या फर्क है जो हमको, एक एक व्यक्ति को पेशेंट से बॉडी में चेंज कर देता है? क्या फर्क है एक मशीन के बीच में और हमारे बीच में? क्या है वो? किसी ने अभी चैट में लिखा, यस, दैट इज, व्हाट इज दैट? जैसे कि कैमरा भी देखता है, हमारी आंखें भी देखती हैं, फर्क क्या है? क्या हम भी केमिकल बैग हैं क्या? द डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ सोल, आत्मा की उपस्थिति। ये क्या है? ये फर्क है, यही अंतर है, यही, हाँ, अंतर क्या करता है, बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। किसकी? एक मनुष्य की, एक व्यक्ति की, इन कंपैरिजन टू एनी काइंड ऑफ कार और हाउस, कुछ भी हो। जैसे आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आज कितने करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, किसके लिए कर रही है? हाँ? I'm again getting, can we increase? I'm sorry, I think ये जो लाइसेंस है, it is only for 100 participants, और I'm not the organizer, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं they can take a call। और अगर YouTube लिंक, अगर आपने YouTube पे इसको फॉरवर्ड किया है, तो उसका लिंक आप प्लीज शेयर कर दें चैट बॉक्स में, ताकि आपके जो अदर फ्रेंड्स भी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, प्लीज, एंड आई होप they can take, you can allow, okay, so I request Shubhendu sir, if something can be done, so please, अगर आप इसको you can send upon the YouTube also,
जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इट विल बी गुड फॉर देम, है ना? ओके, रिकॉर्डेड सेशन विल बी प्रोवाइडेड, ऑलराइट। आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, वो लोग बाद में सुन सकते हैं। तो यस, क्या है डिफरेंस? इज द प्रेजेंस ऑफ सोल। अब बहुत से लोग बोलेंगे, अरे सर आपने वही बातें स्टार्ट कर दी, वही कही सुनी कहानियां। हाँ, अरे हम सब जानते हैं, हम तो इंडिया में पैदा हुए हैं, दादी और नानी ने खूब कहानियां सुनाई हैं, अरे आत्मा है। तो क्या होता है कई बार, द फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मीन्स घर की मुर्गी दाल बराबर। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होती है हमको, तो भी क्या होता है, उसे हम कई बार वैल्यू नहीं देते उसको। हम कुछ लोग कहते हैं, नो सर, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सोल। तो जैसे कोई व्यक्ति जब क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो हम बोलते हैं, अरे वो हमें छोड़ के चला गया, ही हैज पास्ड अवे, वो हमें छोड़कर चला गया। कौन चला गया? वो 5 फीट 8 इंच का बॉडी तो आपके सामने लेटा हुआ है, तो कौन चला गया? रोने की बात क्या है? जिससे हमने फ्रेंडशिप कर रखी थी, जिससे हमने इतने सारे हमारे रिलेशंस थे, वो तो हमारे सामने ही है। तो क्यों कहते हैं वो चला गया, वो चला गया? कौन चला गया? द क्वेश्चन शुड बी रेज्ड, हु हैज पास्ड अवे। तो देयर इज अ वेरी नाइस दिस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दिस इज साइंटिफिक। वी आर हैविंग फ्यू scientific narrations over here कि there is one cardiologist, you know cardiologist means जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हृदय विशेषज्ञ। उनकी एक बुक है, his name you can see on the screen, I think it is Michael or Michelle, whatever they pronounce, Michael Sabom or Michelle Sobam. The book name is Light and Death, one doctor's fascinating account of near death experiences. इन्होंने पूरा बुक लिखा है। ही इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो ही इज एन अमेरिकन डॉक्टर। इनकी बुक में बताते हैं कि मैंने कितने ही सारे पेशेंट्स को जब मैंने ट्रीट किया, उनके हार्ट का मैंने ऑपरेशन किया, तो मैंने पाया कि जब जब वो क्या थे, जब वो टोटली अनकॉन्शियस थे, जब वो कोमा में, ऑलमोस्ट लाइक ना, आई शुड नॉट से कोमा, जब वो लोग पूरा अनकॉन्शियस थे, जब उन लोगों को एनेस्थीसिया दे रखा था, बेहोश थे, और उनका ऑपरेशन किया गया, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो दोबारा कॉन्शियसनेस में आए, दोबारा होश में आए, तो वो व्यक्ति, वो पेशेंट बता रहा है कि इतने डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, इतनी नर्सेस थी, आप लोग ये बातें कर रहे थे। यस, ही वाज शॉक्ड। वो सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये व्यक्ति तो क्या था, अरे ये व्यक्ति तो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ और है जो ये ऑब्जर्व कर पा रहा है कि बॉडी के साथ में क्या हो रहा है। इसे बोलते हैं क्या, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इवन रीइंकारनेशन और पुनर्जन्म, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है हमारे बीच में। क्या पुनर्जन्म होता है? ये तो कई कई सुनी कहानियां हैं। नो, in the western countries lot of research is there. There is one doctor here, I think he is a psychiatrist. His name is Ian Stevenson. आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। इवन इयान स्टीवेंसन, ही इज एन अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट। इन्होंने, इनको फंड किया गया था एक स्पेशल सब्जेक्ट रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म पर रिसर्च करने के लिए, और इन्होंने सैकड़ों केसेस की स्टडी की। ये अमेरिका में, यूरोप में इन्होंने वाइडली ट्रेवल किया, और उस ट्रैवलिंग के दौरान ऐसे सैकड़ों
केस इनके सामने आए जिसमें कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग अपनी पास्ट लाइफ, पिछले जन्म के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इनकी बुक्स भी हैं, आप चाहें तो इनको यू कैन इवन परचेज एंड रीड ऑल्सो। दे आर चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ्स, ए क्वेश्चन ऑफ रीइंकार्नेशन, ये एक बुक है। सेकंड बुक है यूरोपियन केसेस ऑफ द रीइंकार्नेशन टाइप, ये भी बुक है। देन थर्ड बुक इज देयर children who remember previous lives. The fourth book is there, unlearned language. Then the life before life. इतनी सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। वो सब क्या है, वो सब फैक्चुअल केस स्टडी हैं। इसमें वो बच्चा बता रहा है कि मैं पिछले लाइफ में, मैं पास्ट लाइफ में कहाँ था, मैं उस विलेज में था, उस टाउन में था या उस सिटी में था, और मेरा इस तरीके से मर्डर हो गया था, या फिर मैं इस तरीके से मेरी डेथ हो गई थी, सब बताया उसने। फैक्चुअल थिंग्स आर देयर। सो यस, देयर इज समथिंग, मतलब बॉडी की जब डेथ जाती है तो बॉडी में कुछ है ऐसा जो क्या करता है, जो बॉडी से बाहर निकल के जाता है और क्या करता है, वो रीइंकार्नेट करता है। उसे हम बोलते हैं क्या, दैट इज द सोल, जिसका सिम्टम है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस दैट परवेट्स द एंटायर बॉडी। द कॉन्शियसनेस, कोई पूछेगा सर ठीक है, बहुत सुना है आत्मा, सोल बहुत सुना है, इसका सिम्टम क्या है, कैसे मान लें, दिखती तो है नहीं। तो कोई चीज हमको दिखे या ना दिखे, कोई जरूरी नहीं है कि हम देखने पर ही विश्वास करें। हम कई चीजों में विश्वास करते हैं, किससे, जब हम उसके सिम्टम देख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोविड है कि नहीं, तो अगर आपको पता लगाना है कि भाई मुझे कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, किसी को बोलेंगे भैया थोड़ा मेरी नाक में देखना, गले में देखना, वायरस दिख रहा है कहीं पे बैठा हुआ, वायरस दिखता है क्या, हमें नहीं दिखता है वायरस। हम क्या देखते हैं, हम सिम्टम देखते हैं उस वायरस के, करेक्ट, वो उस वायरस के सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम देख के कहते हैं यस आपको कोरोना वायरस है। हर चीज में देख लीजिए आप, जस्ट बाय सीइंग द सिम्टम्स वी से यस यस इट एग्जिस्ट। जैसे अभी मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं, रूम में बैठा हूं, वहां पर लाइट है कि नहीं, तो आप लोग नहीं देख सकते यहाँ पर कि लाइट है कि नहीं, बट बिकॉज मेरे फेस पर क्या है, आपको इल्यूमिनेशन दिख रहा है, लाइट दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर यस आप जहां बैठे हैं वहां पर क्या है, वहां पर लाइट है। वहां पर क्या है सर, लाइट है। इसे बोलते हैं सिम्टम। जस्ट बाय सीइंग द सिम्टम वी कैन असर्टेन द थिंग। तो क्या है आत्मा का सिम्टम, द सिम्टम ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस। जैसे अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं गार्डन में, और अगर आपके पैर की अंगूठे में, एट द टो ऑफ योर फीट, अगर एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए, तो क्या होगा, आपको बहुत पेन होगा, करेक्ट। अचानक से हम क्या करेंगे, हमारे मुंह से आवाज आएगी कैसे, बहुत पैर में चुभ गया है। तो क्या है, जो पैर के अंगूठे से और सिर के बाल तक, अगर सिर का एक भी बाल लेकर क्या करें, उसको खींचें, तो भी क्या होगा, हमको हमको सेम पेन होगा, दर्द होगा, अगेन। तो क्या है, जो हमारे सिर से लेके पैर तक फैला हुआ है उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर एक कॉर्नर में क्या है, एलईडी बल्ब लगा हुआ है। वो एलईडी बल्ब तो एक कॉर्नर में है, लेकिन उसका सिम्टम क्या है, एलईडी बल्ब का सिम्टम, बल्ब का सिम्टम होता है लाइट, करेक्ट। उस बल्ब का जो सिम्टम है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइट, वो पूरे रूम में फैला हुआ है। वैसे ही जो आत्मा है, जो सोल है,
ये बॉडी क्या है? ये बॉडी उस सोल का, ये बॉडी उस सोल का रूम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉडी इज लाइक ए लिविंग रूम फॉर द सोल, और इस बॉडी में एक जगह पर वो है हार्ट। आत्मा जंतुर निहितम गुहायाम, जो आत्मा है, जो सोल है, इस बॉडी में हार्ट रीजन में वो निवास करती है। इट रिजाइड्स इन द हार्ट रीजन, और उसका जो सिम्टम है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। किसके रूप में? चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में। Now let us understand what does the Gita talk about. गीता, करेक्ट? गीता क्या कहती है सोल के बारे में? क्योंकि हमने तो आज का सेशन गीता समझना है। तो गीता कहती है, the first lesson from Bhagavad Gita is देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र न मुह्यति। भगवत गीता के केवल दूसरे अध्याय में जब भगवान कृष्ण बोलना ही स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? उसी समय पर सबसे पहला जो लेसन भगवान देते हैं अर्जुन को, वो क्या देते हैं? सेम लेसन देते हैं। वो क्या है? वो है, एज द एम्बॉडीड सोल continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. करेक्ट? जैसे जो आत्मा है, जब हम बच्चे थे, बच्चे से हम जवान हो जाते हैं, जवान से हम वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है जो बॉडी के अंदर लगातार है? वो क्या ऐसी चीज है जो लगातार इस बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है? बॉडी चेंज हो रही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि विद इन ए स्पैन ऑफ 6 to 8 years, 6 से 8 साल में क्या होता है? बॉडी का हर एक सेल चेंज हो जाता है, पूरा बॉडी नया है हमारा। तो वो क्या है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है? वो क्या है जो बॉडी के अंदर लगातार बना हुआ है, इसके कारण हम अपने आप को बोलते हैं लिविंग। जैसे डॉक्टर होता है, वो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करता है। वो इतना कॉन्शियस नहीं होते वो लोग कि उनको सिंपली वो रिप्स को तोड़ देंगे बकायदा। जैसे कैसे आप देखिए पोस्टमार्टम वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बकायदा यहाँ पे जैसे हम पत्थर को तोड़ते हैं ना, ठीक उसी तरीके से सेम रूथलेसली। देयर आर लेबर्स, प्रैक्टिकली कुछ लेबर टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? इस पोर्शन को दे ब्रेक अपार्ट, देन द डॉक्टर्स एंड देयर असिस्टेंट दे डू सम एनालिसिस। और जब ऑपरेशन करना होता है तो नहीं कहते कि यहाँ पे कुछ छेनी हथौड़ी लगा के इसको तोड़ दिया जाए। ऑपरेशन करते हैं तो बहुत डेलिकेटली इस पोर्शन को ओपन करेंगे। उनको पता है कि ये क्या है? ये लिविंग है। तो वो क्या है जिसके कारण हम लिविंग बोलते हैं? भगवान शुरू में ही कह रहे हैं भगवत गीता के, वो है क्या? सोल, दैट इज स्पिरिट सोल। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो क्या कहता है? अविनाशी। Now very important, this is the characteristic of soul. The soul is avinashi, and idam sarvam tatam, very important. That which pervades the entire body you should know to be indestructible. The spirit soul is not destructible. No one is able to destroy that imperishable soul. So nowadays आज आप देखिए लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, वो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ डेथ तो व्यक्ति की होनी ही है, चाहे अभी हो, 10 साल बाद हो, चाहे आफ्टर मे बी फ्यू मोर डिकेड्स, कुछ दशकों बाद हो। जो वैदिक कल्चर है उसमें लोगों को क्या पता था? लोगों को पता था कि डेथ तो क्या है? द डेथ इज द मोस्ट सर्टेन थिंग कैन हैपन एट एनी अनसर्टेन मोमेंट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। आपने सुना होगा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी।
तो हमारे शास्त्र में दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी इसे बोलते हैं। क्या है वो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी? कि डेथ इज सर्टेन बट कैन अकर एट एनी अनसर्टेन मोमेंट। तो लोग क्या थे, people used to be always prepared for their final journey. They knew very well ultimately मेरी डेथ नहीं होगी, नॉट मी। ये क्या है, ये जो सोल है ये तो इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। एंड द सेम थिंग कृष्णा टॉक्स इन द दिस श्लोका 22। यहाँ पे कहते हैं भगवान, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, इस बॉडी की तुलना किससे की गई है भगवत गीता में? जैसे कि क्या है, कपड़ा। हम लोग एक कपड़ा पहनते हैं, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता। हाँ, तो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद क्या होता है, वी चेंज इट। वो कपड़ा पुराना हो जाता है, फेड हो जाता है, वो यूजफुल नहीं रह जाता। कपड़ा फट जाता है तो क्या करते हैं, हम नया कपड़ा खरीद के पहन लेते हैं। वैसे ही इस शरीर को क्या बोला गया है, ये शरीर कपड़े की तरह है जो हमको कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए दिया गया है। वो भी हमारा नहीं है, हमको दिया गया है, किसी और, किसी ने दिया है हमको वो। अब हमारी इच्छा के अनुसार, इच्छा हमारी थी लेकिन कपड़ा हमारा नहीं है, रेंटेड है ये। तो क्या है, जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, ये पुराना शरीर त्याग के नया शरीर धारण करती है। एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या आत्मा मटेरियल, हाँ, एलिमेंट्स की बनी हुई है क्या? किसकी बनी हुई? हमारा शरीर क्या है, हम सभी जानते हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो आत्मा क्या ऐसी की बनी हुई है? तो यहाँ पे भगवान क्लैरिफाई करते हैं, दिस स्पिरिट सोल इज नॉट मटेरियल इन नेचर, इट इज एंटी मटेरियल इन नेचर। जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने सुना होगा ये वाला वर्ड एंटी मैटर। हम लोग जानते हैं एंटी प्रोटॉन, एंटी मैटर हम पढ़ते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं एंटी मैटर, वो एक्चुअल एंटी मैटर नहीं है। क्योंकि एंटी मैटर का मतलब क्या हुआ? एंटी मैटर का मतलब हुआ जिसके अंदर मैटर के जस्ट अपोजिट सारी प्रॉपर्टीज हो। यस और नो? जैसे मैटर क्या है, मैटर नेचर में चेंजिंग है, मैटर का जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिबल है। हाँ, मैटर जो है उसको नष्ट कर सकते हैं। मैटर जो है वो एक टाइम पे क्या होता है, उत्पन्न होता है। द मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो एंटी मैटर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सो हमारे शास्त्र में आज से हजारों सालों पहले एंटी मैटर जो है उसका डिस्कशन दिया गया है। आपको सरप्राइज होगा, नील्स बोर, यू नो नील्स बोर, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया था। नील्स बोर बोलते हैं, ही वाज फिजिसिस्ट, उन्हें नोबेल प्राइज ही मिला था इवन। बोलते हैं द क्वांटम थ्योरी will not sound very much strange to the students of the Upanishads. I'm repeating again. The quantum theory will not sound strange to the students of Upanishads. और ये भी कहते हैं, even I go into the Vedas to explore more about the quantum physics. See? तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ये एंटी मैटर, वो एक्चुअल एंटी मैटर जो है, वो एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन ये नहीं है, एक्चुअल एंटी मैटर है
वह स्पिरिट सोल indestructible, unchangeable. It cannot be cut by any weapon. It cannot be burnt by fire. It cannot be moistened by water. It cannot be withered by the wind. No matter can affect this anti-material particle. And then this the spirit soul, let's understand the same shloka. Indriyani prani ahur indriyabhya param manah manasastu para buddhir yo buddhe paratastu saha. You'll understand this from this example, this shloka, that what is this spirit soul? The spirit soul is covered by two kinds of bodies. The one is called the gross body, other is called the subtle body. What is that? The spirit soul is covered by gross body. Gross मतलब स्थूल शरीर. अपने शरीर को देखिए आप, क्या है इसमें? स्किन है इसके ऊपर. स्किन क्या है? अर्थ. हाँ, इसके अंदर वेन्स हैं, नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनमें क्या है? रक्त है, ब्लड है, वो वाटर है. फिर फायर, एयर, ईथर. फायर अग्नि है, शरीर का टेम्परेचर होता है. एयर ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं. ईथर स्पेस हमने ऑक्यूपाई कर रखा है. ये ग्रॉस बॉडी है. इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक और बॉडी है, उसे बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर. माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो. करेक्ट. हम बोलते हैं ना मेरा मन, मेरी बुद्धि. फॉल्स ईगो मीन्स आइडेंटिटी, पहचान. और उसके अंदर है ये स्पिरिट सोल. द सोल इज also, it's also a personality, embodiment of eternity, knowledge and bliss. बट अभी किससे कवर्ड है? ये दो तरह के बॉडी से कवर्ड है. जैसे हम भी जब मान लीजिए सर्दियों के दिन है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीपल क्लोथ्स पहनते हैं. हमने टी शर्ट पहन रखा है, हमने जैकेट पहन रखा है, शॉल ओढ़ रखी है. करेक्ट. हम हमारे ऊपर जैसे मल्टीपल क्लोथ्स पहनते हैं, वैसे ही सोल ने अपने ऊपर क्या है? ये दो तरह के कपड़े पहन रखे हैं. तो क्या होता है? ये जो कपड़ा है, जैसे कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये भी एक कपड़ा है सोल के लिए. ऐसे अलग अलग कपड़े हैं. डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स आर देयर. सो आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो हम लोगों ने पढ़ा है हमारे स्कूल डेज में. भाई चार्ल्स डार्विन, पता है? चार्ल्स डार्विन से कई हजारों सालों पहले ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे शास्त्रों में, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, पद्म पुराण में दिया हुआ है. यस, इवन ऐसा बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा. हमारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद क्या हुआ? उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए. तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या कर दिया? इंटरप्रेट किया उनको. यस, लाइक रिलेटिविटी ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी दिया गया है. सहस्र युग पर्यंतम आहार्यत ब्रह्मणो विदु. हमारे यहाँ पर जो 6 महीने हैं हमारे यहाँ के, वो हेवनली प्लैनेट्स, अपर प्लैनेट्स में वहां के 12 आवर्स हैं. और जो हमारे यहाँ का 1 साल है, वो वहां का 1 दिन है, 24 घंटे हैं. ये ऑलरेडी दिया है शास्त्रों में. ऐसे करते 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 अप टू ब्रह्मलोक, द क्रिएटर ऑफ द इंजन ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड, उनकी लाइफ दी गई है भगवत गीता में कि 1000 महायुगास आर इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा. ये ऑलरेडी दिया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम. इट्स नथिंग न्यू. So many different theories are there. The particle nature of light, that is discussed. The theory of expanding universe, अगर आपने पढ़ा हो किसी ने तो, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये पहली बार 1930s में आया. वो वे बैक हजारों सालों पहले हमारे शास्त्र में दिया है ऑलरेडी. थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की यूनिवर्स जो है वो विष्णु से एक सीड की फॉर्म में बाहर आते हैं और वो सीड एक्सपेंड होता है. I will tell shloka also to you today in Sanskrit. It is told Jalja Navlakshani Sthavara Lakshvimshati Krimiyo Ruddha Sankhya Kya Pakshinam Dash Lakshanam.
त्रिशतलक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषा अशीतिं चतुरांश्चैव लक्षांस्तान् जीव जातिषु जलजा नवलक्षाणि। जलजा, जलजा मतलब, जा मतलब जन्म लेने वाला, इसलिए अगर आप लोगों ने हिंदी में हम लोग पहले पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स, जलजा जो जल से जन्म ले, जैसे कमल को बोलते हैं, लोटस को बोलते हैं, मीन्स एक्वेटिक, जो भी जीव पानी के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं जलज। तो कितने प्रकार के एक्वेटिक हैं, कितने प्रकार के जलचर हैं? नवलक्षाणी, देयर आर 9 लाख स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक्स। कितना प्रिसाइज दिया है आप देखिए। अगर आज के जमाने में एक साइंटिस्ट डिस्कवरी कर दे कि पानी के अंदर इतनी स्पीशीज हैं, ही विल गिवन नोबेल प्राइज। शास्त्र ने दिया है पहले ही। और स्थावरा लक्ष्मीशति, कितने प्रकार के? स्थावर मींस स्टैटिक, जो एक जगह पे रहते हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स, वो है 20 लाख। कृमियो रुद्र संख्या का, रुद्र मींस 11 lakhs क्या है? 11 lakhs आर insects like butterfly and so many. पक्षुनाम 10 लक्षम, 10 लाख प्रकार के क्या हैं? क्या 10 लाख प्रकार के? पक्षी। पक्षी मीन्स बर्ड्स। त्रिशत लक्षाणि पशवः, 30 लाख प्रकार की प्रजातियां, स्पीशीज किसकी हैं? जानवर, पशुओं की। चतुर्लक्षाणि मानुषा, 4 लाख प्रकार के स्पीशीज किसकी हैं? मनुष्यों की हैं। तो यहाँ मेरे सामने सारे मैनेजर और इंजीनियर्स हैं, और आई होप सबकी मैथ तो अच्छी होगी। तो बताइए कितना हो गया टोटल, काउंट करिए। दलजा नवलक्षाणी 9x एक्वेटिक्स, स्थावर लक्ष्मीशति 20 lakhs trees, 11 lakhs insects. Please count. Don't be dull. Be very alert when we hear especially the Vedic knowledge. And 10 lakhs birds. मुझे आंसर नहीं आया चैट में किसी के भी. And then 30 lakhs birds and 4 lakhs humans. कितना हो गया? करेक्ट, कुछ लोगों के आंसर आए 84 lakhs. सी, तो ये दादी नानी की कहानी नहीं है 84 लाख योनियां होती हैं। हाँ, ये कहीं सुनी बातें नहीं है। 84 lakh स्पीशीज आर नॉट ए मिथ, दे आर ए रियलिटी। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये जो 84 lakhs हैं, हाँ प्लीज, एनफ एनफ, सबके आंसर आ गए हैं। हाँ हाँ, आई थिंक समथिंग हैज कम। आई एम सॉरी, सेशन इज एक्सटेंडिंग लिटिल बिट, 5 minutes more। अगर आपको कोई और मीटिंग अटेंड करनी है तो नॉट एन इश्यू। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सटेंडिंग द सेशन फॉर 5 minutes, then I will end the session. So but the thing is, ये जो ह्यूमन लाइफ है ये क्या है? ये एक जंक्शन है। क्या है ये एक जंक्शन है जिसमें हम डिसाइड कर सकते हैं नॉट टू एंटर दिस साइकिल अगेन। ये जो स्पिरिट सोल है जो आज इस ह्यूमन बॉडी के अंदर है, वही स्पिरिट सोल क्या करती है? इवॉल्व करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज द रियल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्या है वो? रियल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि आत्मा इवॉल्व करती है, सोल इवॉल्व करती है, बॉडी इवॉल्व नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि बंदर उछलते कूदते अचानक से एक दिन क्या हो गया, गूगल के ऑफिस में आके बैठ गया और प्ले स्टोर पे एप्स बनाने लग गया। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग एप से आए हैं। हमारा एवोल्यूशन ब्रांचेस टू बेंचेस नहीं हुआ है। रॉन्ग थ्योरी, ब्रांचेस टू बेंचेस। ऐसा कभी नहीं था कि कोई बंदर जो है वो करोड़ों साल क्यों नहीं हो जाए, कभी भी क्या नहीं बनेगा, वो ह्यूमन नहीं बन सकता। चिंपैंजी का डीएनए मनुष्य के डीएनए के, ह्यूमन बीइंग के डीएनए के 99% इक्वल है। सोचिए आप,
तो चिंपैंजी कितने % ह्यूमन बीइंग है बताइए? क्या चिंपैंजी को हम 99% मनुष्य मान लें? चिंपैंजी 100% चिंपैंजी है, वो 0% ह्यूमन है। तो क्या है ऐसा इस बॉडी के अंदर? वह स्पिरिट सोल, उसके कारण चेंज आता है बिहेवियर में, कॉन्शियसनेस में। वो स्पिरिट सोल बॉडी चेंज करती है, इसे बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन। तो हमारे कर्म के अनुसार हमें क्या मिलता है? नया नया बॉडी मिलता है। इसलिए बोलते हैं मनुष्य जीवन है, भगवत गीता का मैसेज है, प्लीज ट्राई टू ब्रेक दिस रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। पुनरपि जनना पुनरपि मरना पुनरपि जननी जठरे शयना, ये संसारे बहुत सारे कृपया पारे पाही मुरारे। ये प्रेयर है एक आचार्य की कि हे भगवान, इस संसार में क्या है, इतना कष्ट हम झेल रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। अगर अगला जन्म, मृत्यु के बाद अगला जन्म भी पड़ा, और पड़ा क्या, इट इज ए फैक्ट, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज ए फैक्ट, एवरीवन हैज टू टेक ए बर्थ। तो दोबारा एक माँ के गर्भ में जाओ, वहां पे 9 महीने तक उल्टे टंगे रहो, फिर बाहर आओ, हाँ, फिर बेड में पड़े रहो, फिर LKG UKG, फिर प्राइमरी, ट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज, सो मच प्रॉब्लम। तो शास्त्रा से इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्या नहीं करना है? केवल और केवल जीवन को यापन नहीं करना है। गेटिंग? हमें क्या नहीं करना है? जीवन का केवल जीवन यापन नहीं। वो तो पशु भी कर रहे हैं। व्हाट ए बिग थिंग! देयर नथिंग बिग इन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, नथिंग बिग। Even the animals are eating, animals are sleeping, even the animals are having intercourse and producing children, even the animals are defending. What is a big thing if we also do the same thing? कोई फर्क नहीं है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उन्हीं 4 चीजों को करके अपना जीवन गंवा देने में। That's why the श्रीमद् भागवतम is the post graduate study of spiritual science. वो कहती है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतित अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसः विषयः खलु सर्वतः स्यात्। वंडरफुल श्लोका। ये कह रहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है, हमें क्या है? अशितीम चतुरांश चैव लक्षांश तान जीव जातिषु मानुषम जर्ययत्। गोल अचीव करने हैं, ठीक है, आप वो करिए, नॉट डिनाई। उसके साथ साथ क्या करना है? उसके साथ हमें ये जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, इसके लिए एंडेवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो भगवत गीता का पहला लेसन है जो हमने आज समझा है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, अथाह है समझाने के लिए, समझने के लिए, चर्चा करने के लिए, डिस्कशन के लिए, बट इतना समय नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑफिशियली सेशन एंड्स हियर, बट कुछ क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा, और उन क्वेश्चन से पहले भी एक वी हैव गॉट वन मंत्रा मेडिटेशन। एक मंत्रा मेडिटेशन है, तो ओनली फॉर 2 मिनट्स मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन है, मैं आपको 2 से 2.5 मिनट उसको मैं आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। प्लीज ऑल ऑफ यू टेक एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज है केवल वो पर्याप्त नहीं है। उस नॉलेज को ग्रास्प करने के लिए हमारा जो माइंड है, क्योंकि शब्द मंत्रा, मंत्र बोलते हैं मनः त्रायते इति मंत्रा, जो मन को क्या करे? मुक्त करे एंजाइटी से, टेंशन से, फियर से, ताकि हम स्पिरिचुअल नॉलेज को ग्रास्प कर पाए, उसे बोलते हैं मंत्रा। तो दैट मंत्रा मेडिटेशन, जिसको कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं वर्ल्ड वाइड, हाँ,
हमारे जहाँ भी हमारे सेंटर्स हैं, लोग जुड़े हुए होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो प्लीज, इट इज वेरी सिंपल। हाँ, ये इट इज कॉल्ड 16th लेवल हरे कृष्णा महामंत्र by the name, by the words are Hare Krishna Ram Hare Hare. Give me a minute. So this mantra we have to simply chant and hear. Again I am telling, what do you have to do? You have to chant and hear. So I will be playing for you for next 2 minutes, and please all of you can chant, and then we will wind up the session. If time allows, then we can have few questions. Let me see, what does Subhendu Prabhu's next program will be. Sir, can I have a 2 minutes mantra meditation? Subhendu sir? Sure, sir. Sure. Okay, all right. Thank you. Thank you. So please, I'm going to share the screen. All of you, I humbly request, if you are suppose walking, and then you can sit down, and much better nearby you, if there any anyone is there, you can tell them also not to distract you for the next 2 minutes. Okay. So I'm going to share the screen on the I think I can be again given the host, right, so that I can share the screen of the mantra meditation. Shubhendu sir, please. And I'm going to play. There is a track. There is a 108 time tracks, but time is not there to chant for 108 times. So I will be doing. Okay. So now you are host. I request again to enable me. Okay. Thank you. Thank you. So please, all of you, chant the first mantra after me. Then you will be chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Please repeat after me. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. This Hare Krishna mantra is too simple. Let me just show you once. So give me a moment. So this is okay. So this is, I hope all of you can see now even the Hare Krishna mantra on the screen. If I am not wrong, it is Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So you have to chant and hear. Okay, that one track will be going on. Please, all of you again can repeat after me. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Listen carefully. You have to chant and hear. Not in the mind. Your lips have to vibrate the sound and it should fall on the ears. All right. So now I'm going to start this. So please, all of you, start the chanting of Hare Krishna mantra with this track. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Thank you so much. Hardly for 2.5 minutes, we chanted Hare Krishna mantra. This is called mantra meditation. Hmm? So all of you can practice at your home, and your even family members can practice. आपको बहुत फायदा होगा इससे, स्पेशली आज के समय में जबकि इतना टेंशन एंजाइटी वी आर गोइंग थ्रू, आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा. एंड स्पेशली जो मंत्रा मेडिटेशन है, ये हमको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको हम ग्रास्प कर पाए, उसके लिए क्या करेगा, रिसेप्टिव बनाएगा बहुत ज़्यादा. तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी हैं आज, और आई होप कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा, मिला होगा इवन. एंड आई थैंक यू सो मच Shubhendu Shekhar ji that he organized this seminar for the benefit of all the students, or whosoever, maybe there may be a few faculty members also. Questions, because time नहीं है हमारे पास में इतना, तो आपके जो प्रश्न हैं, मैंने बहुत सारे तो ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं जो बीच में आए थे, मैंने उनको आंसर कुछ कुछ तो कर दिया है. सेशन में आपको आंसर मिल गया होगा. जो आंसर्स आपको नहीं मिल पाए हैं, मे बी इन फ्यूचर इंटरेक्शंस वी कैन टेक, बिकॉज now the time is not there. Now I hand over to Shriman Shubhendu ji. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण गुरु जी. सबसे पहले मैं कॉलेज SRM बिजनेस स्कूल लखनऊ की तरफ से आपको बहुत बहुत I धन्यवाद think देना yeah. आपको धन्यवाद देना चाहूँगा Please. कि आपने एक अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि मुझे मालूम है पर्सनली कि आपके कितने सेशंस लगातार एक के बाद एक लगे रहते हैं. लगभग हर दूसरे दिन आपका कोई एक नया सेशन लगा रहता है किसी जगह पर. तो आपने अपना एक बहुत ही कीमती समय निकाल करके हम लोगों के कॉलेज में हमारे जो MBA के स्टूडेंट्स हैं और जो BTech के स्टूडेंट्स हैं, इवन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लगभग 40 के आसपास फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाइव सेशन चल रहा है यूट्यूब पे. तो आपने इतना एक अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद. गुरु जी, केवल एक क्वेश्चन है जो कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मुझे फ़ोन करके और
चैटिंग से मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा केवल एक क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दें। जब मैंने लोगों को ये बताया कि एक सज्जन आ रहे हैं हम लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, जो भगवत गीता पे कुछ बताएंगे, और जिसके साथ में आपका नाम और आपका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था, एवरी पर्सन वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि सर एक ओके बीटेक, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था कि ऐसा क्या रहा कि आपका जो एक बैकग्राउंड टेक्निकल होने के बाद से सडनली यू शिफ्ट फ्रॉम बैकग्राउंड फ्रॉम बीटेक टू काइंड ऑफ डिवोशनल लाइफ, तो ऐसा क्या चेंज है लाइफ में? और दूसरा, लोगों ने पूछा कि ये जो चेंज है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों, राज क्या है? क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी चीज है, या आध्यात्मिक ऐसी चीज है जो बहुत ही आसानी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। तो आखिर ऐसा क्या रहा कि आप एक बीटेक बैकग्राउंड से शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स इस आध्यात्मिक? spirituality यस correct सर, यस। okay please give me a moment let me put my charger on please okay good very good question और ये बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे और मेरे जो कलीग्स डिवोटीज हैं उनसे भी कि ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप लोग अचानक से शिफ्ट हो गए फ्रॉम और lucrative career lucrative you are having you were having the chances for wonderful material life outside also तो ऐसा क्यों आपने शिफ्ट किया? NITs IITs ये तो लोग तो इसके पीछे भागते हैं, लोग तो तरसते हैं वहां जाने के लिए, तो ऐसा क्यों? तो पहली बात तो ये कि देखिए दुनिया में हर व्यक्ति जो भी इंटेलिजेंट है, हर व्यक्ति हमेशा प्रमोशन चाहता है, करेक्ट? जब तक हमको कोई भी हायर चीज नहीं मिलेगी, unless and until we get higher thing we cannot give up the lower thing। ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2.57 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रिंसिपल है परम दृष्ट्वा निवर्तते, not 57 it is 9 2.59। सो परम दृष्ट्वा, अगर हमें कोई हायर ऊंचा स्वाद मिल जाए तो हम नीचे टेस्ट को क्या करते हैं, नीचे वाला टेस्ट जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं। यस नो? जैसे कोई बैगर है अगर स्ट्रीट पे खाता है और उसको बहुत अच्छा फीस्ट दिया जाए तो फिर वो स्ट्रीट पे खाना बंद कर देगा। यस और नो? तो वैसे ही क्या है, ये जो बाहर एक्सटर्नल अचीवमेंट्स जो हैं, द नेम फेम पोजीशन and even the happiness which we derive from the relationship, तो ये जो हैप्पीनेस है जिसको हम चाहे हम इकोनॉमिक कह दें, वी कैन टेल इट रिलेशनल, संबंधों में जो खुशी मिलती है, ये सब क्या है, ये टेम्पररी है। पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, दिस इज नॉट द थिंग विच विल सेटिस्फाई अस। आप पाएंगे अगर वो हमें मिल भी जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति को एवर लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो व्यक्ति को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि ठीक है आप जीवन जी रहे हैं मनुष्य का, तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति को अपना पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन क्या करना पड़े, उसको रिनाउंस करना पड़े। नो, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग चाहिए ऐसे जो कि क्या बनेंगे, दे विल बी कस्टोडियंस, दे विल बी द कस्टोडियंस ऑफ दिस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, जो अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर क्या करेंगे, 100% डेडिकेट करेंगे
और वो इसके फील्ड को एक्सपेंड करेंगे, लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इसे बोलते हैं मिशनरी। उन्हें बोलते हैं कॉल्ड एज द मिशनरीज। एंड और लोग जो हैं उन्हें क्या बनना चाहिए, उन्हें बेनिफिशियरी बनना चाहिए। एटलीस्ट बेनिफिशियरी हर एक को बनना है। जैसे आज टेक्नोलॉजी है, हम नॉट एवरीबडी इज इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी। तो कुछ लोगों ने इन्वेंट किया, एक्सपेंड किया, कुछ लोग फायदा ले रहे हैं। वैसे ही तो जैसे हमारी लाइफ क्या है, ये कॉम्बिनेशन है मैटर और स्पिरिट का। तो मटेरियली ठीक है, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, हमें रुपया भी कमाना है हमें, बट बीइंग स्पिरिट सोल, जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में ही दो तरह के जीवन जीता है। पहला जीवन वो जीता है, इसे बोलते हैं ऑफिशियल लाइफ। ऑफिस जाता है, कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो रुपया कमाता है, लेकिन घर आता है, घर पे आके वो एक अलग तरह का जीवन जीता है। करेक्ट। वो बैलेंस करता है दोनों के बीच में। ऑफिस में उसकी कुछ ड्यूटी है, घर पे उसकी अलग ड्यूटीज हैं, क्योंकि उसे अपनी दोनों पहचान पता है। उसे पता है मैं ऑफिस में मैनेजर हूं, लेकिन मैं घर में किसी का हस्बैंड हूँ या किसी की वाइफ हूँ। करेक्ट। मैं बच्चों का पिता हूँ। पहचान, जब हमें हमारी पहचान पता होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसी हिसाब से एक्शन करते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि अरे हम स्पिरिट सोल हैं, हम आत्मा हैं, तो हमें आत्मा का एक्शन भी करना चाहिए। तो आत्मा का जो एक्शन है वो क्या है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जब मैं मेरे कॉलेज में था तो एक्चुअली बचपन से भी, बिकॉज ऑफ माई मदर, शी वॉज रिलीजियस लेडी, तो एक रुझान था बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्कूलिंग पूरा किया, स्कूलिंग पूरा किया, कोचिंग वगैरह एवरीथिंग। जब एनआईटी मिला, एनआईटी वाज वेरी रेप्यूटेड उस समय में, 2005-6 में। एनआईटी और आईआईटीज दे वर वेरी फ्यू, बहुत कम थे। और इवन स्टूडेंट्स जो थे, ऐसा देयर आर नॉट मोर डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि जो लोग आईआईटीज में क्रैक किया है, एनआईटीज में आए हैं। और वहाँ फर्स्ट ईयर में व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मुझे समय मिला एक्सप्लोर करने का। तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइब्रेरी का फिलोसफी सेक्शन एक्सप्लोर किया। और मैं कांटेक्ट में आया फॉर्चुनेटली हरे कृष्णा मूवमेंट के, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में आया मैं। और इट टुक मी गुड टाइम, कई महीने लगे असर्टेन करने में, समझने में कि कौन सही है, कौन कितने एक्सटेंट तक बता रहे हैं, मुझे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। एंड ऑलमोस्ट उन 3-4 सालों में जब पूरी तरीके से समझ में आ गया कि जो इतना इम्पोर्टेंट है ये नॉलेज, और लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, और बहुत ही कम लोग हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीचर्स। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि अगर मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करके काम आ सकता हूँ लोगों को फैलाने में इस नॉलेज को, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। सो आफ्टर माय बीटेक I took the decision to become a full-time dedicated monk devotee, और ऑलमोस्ट 1 decade से ऊपर हो गया है। और मैं तब से प्रैक्टिस भी करते हैं, स्टोरी। वेरी नाइस सर, वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने उसको शेयर किया हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। एनीथिंग एल्स प्लीज। आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने अभी शेयर किया हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, वो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स को और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट रहेंगे इससे। और हम चाहेंगे कि भविष्य में जब भी हम स्थितियाँ हम लोगों की सामान्य होंगी और ये जो कोविड वाला सिचुएशन है जब ये नॉर्मल रहेगा, तो हम लोग एक ऑफलाइन सेशन भी ज़रूर करेंगे। और हम लोग के कॉलेज में ये सेशंस होते रहते हैं, तो भविष्य में हम जल्दी ही आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। और आपसे भी चाहेंगे कि आप जब भी हम आपको दोबारा से एक फिजिकल फॉर्म में जब एक वर्कशॉप करने के लिए चाहेंगे,
तो आपसे भी एक चाहिए कि आप हम लोग से जुड़े और भविष्य का जो हम लोग का प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही है। अभी हमारे साथ में नहीं सर, नो फर्दर क्वेरीज हैं, अभी तक कोई क्वेरी नहीं है। और आपका जो ग्रुप है मैं उसको भी शेयर कर दूंगा अपने इस ग्रुप में, और आपका फ़ोन नंबर, जिससे बाकी लोग भी इससे बेनिफिटेड हो सकें और चाहेंगे कि भविष्य में आप करेक्ट, थैंक यू। यस, यू कैन डू वन थिंग, यू वाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ सर, श्योर, सुन रहे हैं सर। हाँ, तो आज जो हमारा जो ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जी उसमें शेयर कर सकते हैं। जी और बिल्कुल। आई थिंक और कुछ लोग हिंदी में चाहते हैं कई बार, तो मैं हिंदी वाले लोगों के लिए तो मैं ही शेयर कर देता हूँ कि अगर जी आप लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं हम्म, तो वेट ए मिनट प्लीज, जस्ट मैं आपको, जो लोग हिंदी में सेशन चाहते हैं उनके लिए हिंदी में भी वो लोग कर सकते हैं, एंड जो लोग इंग्लिश में अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश वाला सेशन रहेगा। गिव मी ए मोमेंट, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। गेटिंग दैट। I'm sorry, I'm not getting the link at the moment. Yes, please. Wait, I got it. तो ये हमारे 2 सेशन रहते हैं, जो कि एक संडे को होता है 12 to 1, एंड सेकंड जो सेशन है वो यस प्लीज। So I'm going to share here. I don't know what is the problem with the Zoom. I'm sorry, some problem. I'm facing some technical problem that your screen is not showing here. yes sir, I think you are fine. Yes, please. Okay, please. Yes, it has come already. So please give me a moment. I think some speed problem or something like that. I don't know, this has stopped responding. ठीक है, मैं शुभेंदु जी को आई विल फॉरवर्ड, एंड शुभेंदु जी आप प्लीज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सर, वो वो मैं कर दूंगा। हाँ, वो जो लिंक्स हैं और आपको सर मैं sure, फॉरवर्ड कर दूंगा, आप प्लीज लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगेन सर, वेरी ओके, वेरी थैंक यू सर। थैंक यू सो आप मच, थैंक यू। थैंक यू ये सो मच टू एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Dear faculty members and